the man of God, I just wanted to introduce. He's a very good teacher and very worshiper of God. Whenever he comes, I used to take a piece of paper and I used to write down a song. Whenever he brings a song, a new song. And I expect today also that sir will bring a new song. Hallelujah. Yes. So this is a time to listen from the Word of God. Are you ready to listen from the Word of God? Yes. So let's welcome Pastor P. Wilson to come forward and take your time. Praise the Lord. Hallelujah. हमेशा यहाँ पर मैं जब भी पास्टर जयंता या उनकी प्रिय पत्नी आती है, वे एक बात जरूर कहते हैं. आप मेरे साथ में यू जस्ट रिप्लाई मी, ओके? गॉड इज गुड ऑल द टाइम. Not especially particular day, but it says the all the time God is good. So this is the wonderful day I can count. Not because of Valentine. I'm not telling about that. No. Don't misunderstand me. Valentine is nothing for me. And it should not be. Why I'm saying this is a wonderful day? Because the Word of God says this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Not because of the Valentine Day, but because the God has this day for me and for you. So forget Valentine. Valentine से हमें कुछ लेना देना नहीं भाई. We are not the people of Valentine. We are the people of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Every day we have to celebrate as a lover. And you know who is our lover? Yes, I count. I have no shame to say that Jesus is my lover and I love my Jesus. Hallelujah. There are many reasons behind that. That Valentine, I don't know who's that guy. And I don't want to go in that way, but let me tell you that Valentine has not given his life for me. That Valentine not saved my life. That Valentine has not redeemed me from my sin. And that Valentine is not blessed my life. But let me tell you very openly and very clearly, Jesus Christ has gave his life for me, for my sin, and he saved me, and he blessed me, and still, because of that Jesus Christ, I am alive. Hallelujah. And I am a blessed person because of that Jesus Christ, not for the Valentine Day. Then why should I go after him? Very pin drop silence. ऐसा होता है. घड़ा उल्टा है ना, तो भरने में थोड़ा समय लगता है. भर जाएगा जब आप अपना घड़ा सीधा रखोगे, तो यकीनन एक दिन भर जाएगा. शायद मेरे बारे में यहाँ बैठे हुए सबके बारे में ऐसा ही था. हमारा भी कहीं ना कहीं घड़ा उल्टा रखा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह ने घड़ा सीधा किया, भर गया. अब लबरेज हो रहा है, बह रहा है. एक दिन आपके जीवन से भी ऐसा ही होगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रोशन भाई कह रहे थे गाना गाते. आप कुछ गाना गाते हैं, सोचते रहते हैं. और ये गाना भी जो है, ये मसीह के प्यार के बारे में गाना है जो मैंने बयान था, लेकिन यहाँ बैठकर मैंने उसको नए रूप में लिखा. वेस्ली सर वहाँ बैठे हुए थे, जिलेन सर वहाँ बैठे हुए थे, वासु सर वहाँ थे, सब बैठे थे वहाँ पर. मैं कुछ नए कड़ी मैंने लिखा, प्रस्तुत करता हूँ कि मसीह के प्यार को हमने जब से पाया है, ये दिल भी उसकी मोहब्बत का दीवाना है. प्रेज़ गॉड. हालेलुया. दीवाना बनो, अवश्य बनो.
लेकिन किसी व्यक्ति का नहीं, किसी इंसान का नहीं। अगर दीवाना बनना है तो किसका बनो? यीशु मसीह का बनो। इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, रुतबा मिलेगा, नाम मिलेगा, एक शख्सियत मिलेगी, इज्जत मिलेगी संसार में। अगर मसीह के दीवाने बन जाओगे, पौलुस के समान, पतरस के समान, याकूब के समान, यूहन्ना के समान, इब्राहिम के समान, दाऊद के समान और शमूएल के समान, परमेश्वर फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा देगा। सारी दुनिया में आपका नाम होगा। जैसे पौलुस का, पौलुस भी दीवाना था प्रभु यीशु मसीह का, बल्कि सबसे बड़ा दीवाना था वो तो कहता मैं मर गया, मसीह के लिए मर गया, और वाकई में मर गया था। और जो जी उठा एक नया पौलुस था, जिसको परमेश्वर ने इज्जत बख्शी, उसका रुतबा बढ़ा, उसका सम्मान बढ़ा। जब वो मसीह से प्रेम करने लगा, उसने अपने आप को दे दिया मसीह के प्रेम में, उसका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सुनिएगा गाना, शायद आपको पसंद आए। सोचिएगा इस गीत के बारे में भी। हालेलुया।
complaint from Jesus Christ, and then one desire or suggestion or appeal from Jesus Christ. The both things I want to share with you and I want to put it in front of you. Number one, he complaining. सबके प्रति एक शिकायत कर रहा है और दूसरा निवेदन कर रहा है. So complain and supplication, say, or the desire or the suggestion or can say the command. So I want to put number one, complaint. Jesus has complaint for you and for me. आपके लिए और मेरे लिए यीशु मसीह के पास एक शिकायत है. सुनोगे शिकायत क्या है? Do you want to hear that complaint? Are you ready? Yes. Revelation chapter 2 verse number 4. The book of Revelation chapter 2 and verse number 4. Someone can read both sides. I have this against you, हाँ. that you have left your first love. हाँ. Who said? Huh? Jesus said. To whom? Huh? To whom? Worldly people? Non-Christian people? To whom he complaining? Church believer. What? That you have forsaken your first love. Next, sir. मुझे तेरे विरोध में ये कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया. अब see the seriousness and sincerity in that, especially the seriousness था, उसमें जो गंभीरता है, कभी समझने की कोशिश की. यीशु मसीह कह रहा है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया. तू जो पहले मुझसे प्रेम करता था, मैं तुझे आवाज देता था और तू दौड़ा चला आता था. तेरी आंखें मुझे देखने के लिए तरस जाती थी. तू मुझसे मिलने के लिए जैसे हिरणी नदी के उस पानी के लिए, नालों के लिए हाँफती है, ऐसा ही तू मेरे लिए हाँफा करता था. अपना सारा काम धंधा छोड़कर तू मुझसे मिलने के लिए चला आता था. अदन की बारी में हम मिला करते थे. याद है तुझे? हम घंटों बैठकर बातें किया करते थे. तू अपने दिल की सारी हकीकत, सारा वाकया, सारा गम, सारा दर्द, सारी परेशानी, सारी तकलीफ तू मुझे बताया करता था और मैं तेरी बातों को सुना करता था. सुन रहा है तू? मैं तुझसे कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है, सुन रहा है तू? कहां है आदम? वेयर आर यू? ऐ आदम, तू कहां छिपा हुआ है? कहां बैठ गया है? मैं तुझसे मिलने के लिए आया हूं. तू तो नहीं आता है. तूने तो पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता. मैं तो तुझे आज भी मिलने आता हूं. कहां है तू? शिकायत है. सबसे कह रहा है. यहां पर मैं बैठे हुए हम में से सबसे कह रहा है, यू हैव फॉरसेकन द फर्स्ट लव. भुला दिया है तुमने मुझको. भूल गए. दलदल की कीच में से तुमको निकाला. कोई नहीं था निकालने वाला. वहां पर वे फंसे हुए थे. दर्द में तड़प रहे थे, करा रहे थे, आवाज दे रहे थे. लोग वहां से गुजर रहे थे. कोई तेरे पास में नहीं आ रहा था तुझे बचाने के लिए. याद आ रहा है तुझे कुछ? बड़ी बदहाल जिंदगी जी रहा था तू. तुझे समझने वाला कोई नहीं था.
तुझे संवारने वाला कोई नहीं था, तेरी जिंदगी को बनाने वाला कोई नहीं था। यीशु मसीह कह रहा है, अगर सुन रहा है तो सुन ले। मैंने आसमान छोड़ा, जमीन पर आया तेरे लिए। मैंने तुझे ढूंढा और जब तू मिल गया, मैंने तुझे उस गंदगी से निकाला। और याद कर, तुझे साफ करने के लिए, तेरे बदन को, तेरे रूह को, तेरे प्राण को, तेरे जीवन को साफ करने के लिए मैंने कलवरी के क्रूस पर अपना खून बहा दिया। याद आ रहा है तुझे कुछ? मैं नहीं भूला तुझे, मैं तो तुझे अब भी याद करता हूं। और जब तुझे याद करता हूं, मैं तुझे ढूंढता हूं। मेरी निगाहें तुझे ढूंढती हैं। और जब तू नहीं मिलता तो मैं तेरे लिए तड़प जाता हूं, मैं तेरे लिए परेशान हो जाता हूं। न जाने तू कहां खो गया, जिंदगी की किस वाटिका में खो गया तू। मैं आज भी तुझे ढूंढ रहा हूं और मुझे शिकायत है तेरे विरोध में कि तू संसार के समान बन गया है, तू संसार का सदृश्य बन गया है। तूने मेरे पहले प्रेम को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। प्रभु यीशु मसीह के इन शब्दों में कितनी वेदना है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। कितना दर्द है। एक मां अपने बेटे के लिए किस प्रकार परेशान होती है। मैं सांसारिक मां की बात कर रहा हूं। जब तक वो अपने बेटे को ना देख ले, उसे चैन नहीं आता। इंतजार करती रहती है, कब आएगा। यहां पर वे अधिकांश माता पिता बैठे हुए हैं। अगर पूछना है तो आप मिस्टर पास्टर जयंता से पूछिए, रेवरेंड वेस्ली से पूछिए, पास्टर फिलिक्स से पूछिए, पास्टर निखिल से पूछिए। अगर एक पल के लिए अगर बेटा कहीं ओझल हो जाता है, मां की निगाहें, पिता की निगाहें अपने बेटे को ढूंढती रहती है, कहां गया। और जब उनकी निगाहों के सामने आता है, उनको चैन मिल जाता है, उनको सुकून मिल जाता है, आराम मिल जाता है, वे खुश हो जाते हैं। आप करें मैडम? कितने दिन हो गए आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखे। कितना समय हो गया आपने प्रभु यीशु मसीह से बात नहीं की। आई नो दैट, मुझे मालूम है हमारे विद्यार्थी भाई बहन इंतजार करते रहते हैं आउटिंग का, और स्पेशली अपने परिवार के लोगों से बात करने का। आई एम वेरी सीरियस अबाउट अवर सिस्टर्स। कब जाकर बात करेंगे हम, मां की आवाज को सुनेंगे, अपनी मां से हम बात करेंगे, मम्मी का शब्द हम सुनेंगे, घंटों बात करेंगे, मम्मी से पूछेंगे कैसे हो, क्या कर रहे हो। एक तड़प, एक लगन। पास्टर फिलिक्स से पूछ सकते हैं, उनका छोटा बेटा भाई रोनी परिवार के साथ रहता है। जब कभी उनके साथ में जब उनके बेटे रॉनी का जिक्र करते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर के एक्सप्रेशन को हम देख सकते हैं। हमने उनको कभी बताया नहीं, देख सकते हैं कि जब उनके बेटे की बात आती है कि साहब आपका बेटा कैसा है, क्या है, और उस समय हम बड़े गौर से उनके चेहरे को देखते हैं और समझ में आता है कि कितना कंसर्न है अपने बेटे के प्रति। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का कंसर्न हमारे प्रति नहीं है? क्या वो हमारे बारे में सोचता नहीं है? क्या हमारे बारे में उसका कोई ख्याल नहीं है? और इसीलिए बड़े दुख के साथ
बड़ी वेदना के साथ में कह रहा है, न जाने तू कौन कौन सा डे मना रहा है, क्या कभी तूने मेरा भी डे मनाया? कभी देखा आपने वैलेंटाइन को? ये कौन था वैलेंटाइन? एक सांसारिक व्यक्ति सांसारिक प्रेम में पड़ गया। जब वो प्रेम हासिल नहीं हुआ तो मर गया, और मरने के बाद में उसका डे मना रहे हो। क्या किया उसने? कुछ दिया आपको? वैलेंटाइन ने कुछ दिया क्या? आई एम आस्किंग टू यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वैलेंटाइन ने कुछ दिया? अरे बोलना तो फिर, खामोश खड़े हो। ये आपकी आवाज, आपकी खामोशी बता रही है that you are feeling something guilty in your heart. सुधर जाओ, अब भी मौका है। The Bible says you are the chosen generation. You are set apart from this world. मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मुझे पता है मेरी एक ऐसी एक आदत है बोलने का, एक ऐसा एक भाव है ऐसा बोलने का, वरना हमेशा मैं लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं, लेकिन कभी कभी गंभीर भी हो जाता हूं। और जब गंभीर की बात आती है तो फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्यून चेंज होता है। लेकिन दिल का बुरा आदमी नहीं हूं मैं, एक बार बता दूं आपको, दिल का बहुत अच्छा हूं, रियली कह रहा हूं, दिल का बहुत अच्छा हूं, बहुत साफ सुथरा इंसान हूं मैं। कोई कपट नहीं रखता, कोई खोट नहीं रखता। एक बहता हुआ दरिया के समान है मेरा जीवन, क्योंकि मैं अपने आप को जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन कंप्लेंट तो है, और ये कंप्लेंट मेरी नहीं है, मेरी कंप्लेंट नहीं है, ये कंप्लेंट है आपके उद्धारकर्ता, आपके जीवन दाता प्रभु यीशु मसीह की ओर से। नाउ यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं कुछ नहीं, मैं तो बोल के खत्म हो जाऊंगा, मैं समाज चला जाऊंगा, मेरा क्या है। अब आप सोचिए, आप सोचते रहिए कि ये कंप्लेंट कौन कर रहा है और किससे कह रहा है और क्यों कर रहा है। सोचने वाली बात है। मैं बैठा हुआ था, मैं बहुत पहले जब एक सोच रहा था इस बात को, कोई एक कड़ी लिखा था, मेरी पहली मोहब्बत है तू, मेरे दिल में तू ही तू यीशु। नंबर दूसरा तो बाकी का स्थान आता है ना। पहला नंबर परमेश्वर का, दूसरा नंबर माता पिता का, तीसरा नंबर पत्नी का, चौथा नंबर बच्चों का। ऐसा सीक्वेंस रखो ना भाई। शादी होने के बाद में भूलना मत अपने परमेश्वर को, वो तो बाद की बात है, बाद में आएंगे आपके जीवन में। आपके जीवन में पहला कौन है? मेरी पहली मोहब्बती है तू, और आखिरी भी है तू, मेरे दिल में तू ही तू यीशु। थोड़ा पागल बनिए, थोड़ा दीवाना बनिए, लोग कहने पाए आपको क्या यार, क्या दीवाना है, क्या पागल व्यक्ति है ये वचन के लिए, मसीह के लिए, मसीह के प्रेम के लिए। कुछ ऐसा कुछ बनिए ताकि लोग आपको देखें, और आपको देखकर आपकी नहीं, कम से कम मसीह की तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ करे। यार क्या दीवाना यार, इसके जैसा मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा यार, ये ना पागल व्यक्ति है। तो उसमें भी बड़ा मजा आता है कि दीवाना बन के तो देखिए, किसी और का नहीं, मसीह का दीवाना बन के देखिए, उसके प्रेम का दीवाना बन के देखिए। अब्राहम के समान छोड़ दिया, पौलुस के समान जान कुर्बान कर दी, मर गया, लेकिन छोड़ा नहीं। एक बार मसीह के प्रेम का रस प्याला पीकर देखिए, जिंदगी भर ये नशा उतरेगा नहीं, मैं दावे के साथ में कहता हूं। दूसरा प्याला पियोगे ना, शाम को पिएंगे, सुबह उतर जाएंगे। लेकिन ये ऐसा प्याला है, पियोगे जिंदगी भर उसी नशे में, उसी आलम में डूबे रहोगे। इधर देखोगे, उधर देखोगे, आगे देखोगे, पीछे देखोगे, अगल बगल देखोगे, मसीह ही दिखाई देगा, यीशु ही दिखाई देगा। और वही दिखना चाहिए हमारे जीवन का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ये तो था शिकायत,
हाँ 5 मिनट तो है, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और अगर नहीं भी होंगे तो मैं बासु सर से और क्या कहते हैं जयंता सर से लड़ झगड़ के मांग लूंगा, नहीं देंगे तब भी ले लूंगा मैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे यकीन है वो कभी मना नहीं करेंगे, हालेलुया। वो भी हमसे प्रेम करते हैं, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा हो, अच्छी बात है। अब एक सजेशन, शिकायत तो हो गई, छोड़ दो उसको, लेकिन अब एक सजेशन। Gospel of John, chapter 21, chapter 20, and verse number 15. एक अपील है वहां पर में। Gospel of John, chapter 20, and you can see that 15 to 17. So you just read that. Jesus said to her, Huh? Woman, why are you weeping? Whom are you seeking? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away. No. Verse number, I think so, 21 and verse number 15. Jesus said to them again, Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you. And when he had said this, he breathed on them. Chapter 21, verse number 15. So when they had eaten breakfast, Jesus said to him, Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me? Do you love me? Thank you, Padisa. Thank you. God bless you. Do you love me more than this? Now, this is the appeal. Now forget the complaint. Now come back to the point, this application, supplication. This is the heartly desire of Jesus Christ, that he is asking you just open your ear, just open your mind, just open your heart and listen very carefully the word of Jesus Christ, not particularly for the Peter, but for you and for me. He asking, do you love me more than this? Now this question, keep it in your mind and think about that. Now the question comes to you and me, why should we love Jesus Christ more than this? And the answer is Psalm 116 and verse number 1. Psalm 116 and verse number 1. It's very clear. The answer is given there. Love the Lord because he has heard my voice Because he has heard my voice and my supplication. and my supplication. Oh, see the question and answer. Jesus asking, do you love me? Now the question comes, why should I do? Why should I love my Jesus? And the answer is there, because he heard my voice and my supplication. Many times, my dear brothers and sisters, you are sitting in the presence of God and you pour out your heart and you are crying. Bitterly you are crying. You are asking something to God. The pain is there. All kind of difficulties and questions and problem is there. And you just shedding your tears, shouting, crying, Lord, save me. Lord, have mercy on me. And the Bible says he heard your voice and your supplication. Hello? Answer is there. If someone is asking you why you love your Jesus, tell this answer. Because once upon a time, I was the helpless person. I was a weak person. I was nothing. I was a big zero. When I was in the presence of God, crying and putting my supplication, my voice towards God,
and He heard my voice and He heard my supplication. That's why I love my God. I love my Jesus. You got it that? And just if you look the love of Jesus Christ, you will astonish. If you just flip the pages of Bible, and you will understand the Gospel of John chapter 13 verse number says that His love is an unchangeable love. न बदलने वाला प्रेम. Why should I love? Because His love never changed. And Hebrew chapter 13 verse number 8 says that Jesus is the same yesterday, today and forever. There is no change at all. There is no change. His character, His behavior. Unchangeable love. न बदलने वाला प्रेम. 2 Corinthians chapter 5 verse number 14 says His love controls us. नियंत्रण में रखने वाला प्रेम, या फिर दूसरे शब्द में कहो तो मजबूर करने वाला प्रेम. What is that word? Pastor देखिए second. Constrains us. Hallelujah. Constrains us or controls us. मजबूर करता है. Praise Lord. मजबूर करने वाला प्रेम, परमेश्वर का प्रेम. Even if you just look, Galatians chapter 2 verse number 20 says the sacrificial love. Sacrificial love. He sacrificed Himself for you and for me. And then Gospel of John chapter 15 verse number 9 says it is a divine love. Daimya prem, agape prem, praise the Lord, hallelujah. Not the worldly love, but divine love. Divine love, praise the Lord, hallelujah. Galatians chapter 2:20 says the sacrificial love. Then Romans chapter 8 verse number 35 says inseparable love. Inseparable love. न अलग करने वाला प्रेम, praise the Lord, hallelujah. Inseparable love. And then he says 1 John chapter 13 and verse number 1 John chapter 3 verse number 16 says that love manifested by His death. उसके मृत्यु में हम उसके प्रेम का प्रकटीकरण देख सकते हैं. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया. कलवरी का क्रूस मुझे बताता है कि मेरा प्रभु मुझसे कितना प्यार करता है. मेरा प्रभु आपसे कितना प्यार करता है. जब आप कलवरी के क्रूस को देखो, आपको वहां पर स्मरण आएगा आपके स्वामी का, आपके प्रभु का, आपके उद्धारकर्ता का प्रेम प्रगट रूप में वहां पर में प्रस्तुत हुआ है. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. Can you say this morning with the whole your heart, with the depth of your heart, Lord, really I love you. Not because someone has compelled me, but I have experienced that you have done many things for me. Many miracles I can see in my life, in my family, and I can see that you have given me a free salvation, a gift of life, all kind of talents, all kind of blessing I can see in my life, in my family, and that's why, Lord, I can declare, I can decree in front of the people that I love my Jesus more than these things. इन सारी बातों से बढ़कर हाँ मैं ये कह सकता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं अपने मसीह से प्रेम करता हूँ. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आई डोंट केयर दैट, क्योंकि लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन मसीह ने मुझे सब कुछ दिया और दे रहा है और वो देता रहेगा. प्रेज़ लॉर्ड. एंड नाउ मोर देन दैट ही प्रॉमिस्ड मी. The Gospel of John chapter 14 verse number 1 to 3, He promised me. What He promised me? I will come back to take you in heavenly places. मैं तुझे लेने आऊंगा और तुझे स्वर्ग स्थान में मैं तुझे लेकर जाऊंगा. That's why just I'm in the presence of God. I'm just waiting
I'm just waiting that He is coming back. He is coming back. My Savior is coming back. The life giver is coming back. My Creator is coming back. And I will be with Him forever and ever and ever and ever. God bless you.